چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک سے متعلق کوئی واقعہ سنتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 4 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں آیت کی تلاوت کریں گے اور اسے درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف لکھا ہوا ہے۔ یہ قاف ان حروف میں سے ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے اور ان میں فرق کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قاف لکھا ہوا ہے، اسے آپ نے پر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ دال لکھا ہوا ہے۔ یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب آپ دال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لکھا ہوا ہے زا۔ یہ زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ ذال اور ضا میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ ضا کو موٹا پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے اور ضا کو پر پڑھیں گے۔ اچھا، یہ ضا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ضا ناک میں آواز لے جا کر بھی ادائیگی نہیں کرنی اور اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے ضا۔ کیا پڑھیں گے؟ ضا۔ کیا پڑھیں گے؟ ضا۔ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ضا نہیں ہے یہ، ضا۔ کیا ہے یہ؟ تو ضا کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ذال کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے سین۔ سین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے تا۔
जब हम था की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, सीटी की आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन सीन और स्वाद में आएगी। आएगी। सीन और स्वाद में भी एक फर्क है, वो फर्क कौन बताएगा? आप बताएं। स्वाद को पुर पढ़ेंगे और सीन को बारीक पढ़ेंगे। स्वाद को पुर पढ़ेंगे, सीन को बारीक पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने देखा कि कौफ को भी पुर पढ़ना है, स्वाद को भी पुर पढ़ना है और रॉ को भी पुर पढ़ना है। इन्हें हम पुर क्यों पढ़ेंगे, मोटा करके क्यों पढ़ना है इनको, ये कौन बताएगा? आप बताएं। ये क्योंकि पुर पढ़ने वाले हुर्फ है। ये पुर पढ़ने वाले हरूफ हैं, ठीक है, सही जवाब है। अच्छा, पुर पढ़ने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? जिन्हें पुर पढ़ा जाता है उन हरूफ को क्या कहते हैं? आप बताएं। हुरूफ मुस्तालिया। जी, हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जिन्हें पुर पढ़ा जाता है। अच्छा, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं ये कौन बताएगा? आप बताएं। हुर्फ मुस्तालिया 7 है। कितने हैं हरूफ मुस्तालिया? 7 हरूफ मुस्तालिया हैं जिन्हें हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। एक हरफे कौफ, दूसरा हरफे सौद, तीसरा हरफे ज़ौ। क्या है? वो क्या है? वो है। बाकी 4 हरूफ कौन बताएगा? कौन कौन से, कौन बताएगा? आप बताएं। खो, खा, दौद, दौद, ठीक है। तो, तो, तो क्या है? क्या है? तो, सब मिलकर कहें क्या है? बाज़ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं तो या तोएं, ये तोएं तो नहीं है, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो। क्या पढ़ेंगे? तो। क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे। और आखिर कौन सा है? गईन। क्या है? गईन। ऐसे पढ़ेंगे गईन, ठीक है। 4 ये, 5वां सौद, 6ठा वो और 7वां कौफ। ये 7 हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया जिन्हें कहते हैं। और इन हरूफ को हमेशा हर हालत में मोटा करके पढ़ना ज़रूरी है, पुर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये हरूफ जहाँ भी आपको नज़र आएंगे कुरान पाक में आपने इन्हें पुर पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है दाल। मैंने अभी बताया दाल किन हरूफ में से है? कलकला। हाथ उठाना है, ठीक है। चलें बता दिया दाल किन हरूफ में से है? हुरूफ कलकला। हरूफ कलकला में से, ठीक है। अब हरूफ कलकला मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब साकिन होते हैं तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है। अब यहाँ पर हरूफ कलकला में से दाल आया है लेकिन ये साकिन नहीं है, इस पर तजदीद है। क्या है? तजदीद। यहाँ पर दाल साकिन था तो मैंने बता दिया कि इसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। अब यहाँ दाल मुशद्दद है, इस पर तजदीद है, इसे किस तरीके से पढ़ेंगे ये कोई बता सकता है? चलें आप बताएं। जमाओं के साथ पढ़ते हैं। जमाओं के साथ पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? जमाओं के साथ। जी, जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों, उन पर तजदीद हो तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हा। क्या लिखा हुआ है? हा। और यहाँ लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हा। इन दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है? जी। नहीं है मिलती जुलती। हा हा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस तो है लेकिन जो करे, वरना इनकी आवाज़ मिलती जुलती है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, हा को हा पढ़ देते हैं, हा को हा पढ़ देते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है वो कौन बता सकता है? आप बताएं। हा को हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं और हा को हलक के निचले हिस्से से पढ़ते हैं। ठीक है, एक हर्फ है हा, दूसरा हर्फ है हा। इस हा को हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से कहाँ से पढ़ते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से। हलक के नीचे वाले हिस्से से। और हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से। दरमियान वाले हिस्से से पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हा और इसे पढ़ते हैं हा। फर्क वाज़े? जी। तो तिलावत के दौरान भी आपने इस फर्क का ख्याल रखना है। इसी तरह प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है आइन, ये भी उन हरूफ में से जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है आइन, दूसरा हर्फ है हमज़ा। अब जिस तरह हा और हा में हमने फ़र्क किया था, इसी तरह आइन और हमज़ा में भी फ़र्क करना है, ठीक है। जब हम हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे, सही बता रहे हैं। और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे कहाँ से पढ़ेंगे? दरमियान वाले हिस्से से। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। इस फ़र्क का आपने ख्याल रखना है। तो ये फ़र्क समझ में आ गया आपको? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें मीम पर तनवीन है। क्या है? तनवीन। 2 ज़बर हैं, तनवीन है। फिर इसके बाद आ रहा है लाम। क्या आ रहा है? लाम। लाम आ रहा है। और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ क्या होता है? इदगाम। इदगाम होता है। तो यहाँ पर भी तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से लाम आ रहा है, यहाँ भी इदगाम होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ हमने गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं करना, ठीक है। हुरूफ यरमलून 6 हैं। कितने हैं? 6। जी 6 हैं। एक है या, दूसरा है रा, रा, तीसरा है मीम,
चौथा है लाम, पांचवा है वाव, छठा है नून। ठीक है, अब इनमें से 4 हरूफ वो हैं जिनमें गुन्ना करते हैं, 2 वो हैं जिनमें गुन्ना नहीं करते। जिनमें गुन्ना नहीं करना, वो कौन बताएगा? आप बताएं। रा और लाम में गुन्ना नहीं करना। रा और लाम में गुन्ना नहीं करना। नहीं करना। ठीक है, रा में भी गुन्ना नहीं करना, ला में भी गुन्ना नहीं करना। ठीक है, बाकी 4 हरूफ में हम गुन्ना करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कौन सा हर्फ है? लाम, लाम, तो यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखें लिखा हुआ है तो। क्या लिखा हुआ है? तो, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है। तो किन हरूफ में से है? हुरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया में से। तो ऐसे किस तरह पढ़ेंगे? पुर, पढ़ेंगे। तो और ता की आवाज़ भी मिलती जुलती है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। तो को पुर पढ़ना है और ता को बारीक, बारीक पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए दाल साकिन है, तो यहाँ पर कलकला खूब जाहिर होगा। खूब जाहिर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें लिखा हुआ है दाल, इसमें सीटी की आवाज़ आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब इसे पुर पढ़ेंगे या बारीक? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फर्क का आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये भी देख ले कि यहाँ मीम साकिन है। क्या है? मीम साकिन। अच्छा, मीम साकिन का एक कायदा है कि जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करते। गुन्ना नहीं करते। वहाँ कायदा कौन सा होता है? इकलाब का होता है। इकलाब का होता है, नहीं मालूम, आप बताएं। इजहार शफवी। इजहार शफवी का होता है। कौन सा होता है? इजहार शफवी। जी, इजहार शफवी का होता है और वहाँ हम गुन्ना नहीं करते। नहीं करते। ठीक है, तो ये कवायद हो गए हमारे मुकम्मल। अब आइए मिलकर इस आयत की तिलावत करते हैं। वलक़द 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 ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया। ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया। अच्छा, यहाँ पर प्यारे बच्चों मद्दे मुत्तसिल है। कौन सी मद है? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल का कायदा कौन सुनाएगा? मद्दे मुत्तसिल कब होती है, आप बताएं। हुर्फ़े मद्दा के बाद अगर हमजा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल हो गई। ठीक है, हरूफ अच्छा कुछ और है, चलें आप बताएं। हम लोग दूसरे कलमे में हो। दूसरे कलीमे में हो तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होती है। ठीक है, अच्छा ये सुन लें, हरूफ मद्दा हो और उनके बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो वहाँ मद्दे मुत्तसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल। और अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो यानी अगले कलीमे में हो तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुनफसिल। अब यहाँ हमजा इसी कलीमे में है। ठीक है, तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा और मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींचते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या फिर 2.5 अलिफ। 2 या 2.5 अलिफ तक खींचते हैं। तो आपने इसे भी खींच कर पढ़ना है। ठीक है जी, पढ़ें। वलक़द वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया। अच्छा, यहाँ कलकला जाहिर करना है। ठीक है, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। लहुम अज़ाबस्सईर। आइन की अदायगी वाज़ेह होनी चाहिए और दाल में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लहुम अज़ाबस्सईर। लहुम अज़ाबस्सईर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। अच्छी कोशिश है, लेकिन आपने जो है वो हरकत को कहीं खींचा है और कहीं जहाँ खींचना था वहाँ नहीं खींचा। ठीक है, जैसे आपने बिमसाबीह यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, इसे नहीं खींचना था, हा को
نہیں کھینچنا کیونکہ یہاں حرکت ہے تو اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے. اور یہ شیاطین نہیں ہے, شیاطین, یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں, اللہ پاک کے ایک نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. تو آج ہم ان کا تعارف سنیں گے, ان کی کچھ خصوصیات سنیں گے اور ان کا ایک واقعہ بھی سنیں گے. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں, حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی. اللہ پاک کے نبی. آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے. کیا ہے؟ اخنوخ. اخنور, اخنور نہیں, اخنوخ. کیا نام ہے؟ اخنوخ. اخنوخ نام ہے آپ کا. آپ علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت عطا کی گئی. آپ علیہ السلام پر اللہ پاک نے 30 صحیفے نازل فرمائے تھے. کتنے صحیفے؟ 30 صحیفے نازل فرمائے تھے جن سے آپ درس دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ درس دیا کرتے تھے. درس دیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہے. کیا ہے؟ ادریس. یعنی بہت زیادہ درس دینے والا. سب سے پہلے قلم سے لکھنا, کپڑے سینا, سلے ہوئے کپڑے پہننا, ہتھیار بنانا اور ترازو استعمال کرنا آپ ہی نے شروع کیا. یعنی سب سے پہلے پین سے لکھنا آپ نے شروع کیا. اس سے پہلے پین سے نہیں لکھا جاتا تھا, سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کیے جاتے تھے. اسی طرح ترازو کا استعمال بھی آپ نے شروع کیا. اس سے پہلے ترازو سے تولا نہیں جاتا تھا. اسی طرح علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی اور علم حساب یعنی میتھمیٹکس کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے ہی کی تھی. پیارے بچوں, ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت یعنی روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی. کن سے ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے ملک الموت سے فرمایا میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روح نکالی جائے. آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ان کی روح نکال لی جائے. ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح نکالی اور پھر واپس ڈال دی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا میں جہنم اور جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ جہنم اور جنت. جی, جہنم اور جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے اس کی بھی اجازت عطا فرما دی. ملک الموت نے پہلے جہنم دکھائی جو بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی تھی, جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے, جب طبیعت میں بہتری آئی تو ملک الموت آپ کو جنت کی سیر کے لیے لے گئے. کہاں لے گئے؟ جنت کی سیر. جی, جنت کی سیر کے لیے لے گئے. چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے. کچھ دیر بعد ملک الموت نے واپس چلنے کے لیے عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ملک الموت نے وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی ہر ایک کو مرنا ہے, اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں. اسی طرح اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو, اور میں دوزخ پر سے بھی گزر چکا ہوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے اور نہ ہی وہاں یعنی جنت سے نکالے جائیں گے, یعنی جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے, لہٰذا اب میں جنت سے کیوں نکلوں. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا. آپ کی اس گفتگو کے بعد اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی انہیں چھوڑ دو, یہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام آج بھی جنت میں موجود ہیں اور وہاں کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں, قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر مختلف جگہوں پر ہے. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ترجمہ کنز العرفان. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو, بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن.
تو किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है हमारे अहमद रज़ा भाई और दूसरी तरफ हैं सुफियान अत्तारी भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले आए कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 कितने? 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। लेकिन गलत जवाब दिया तो कुछ भी नहीं, 0, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे अहमद रज़ा भाई से। आप तैयार हैं? जी। आप जबल का माना बताएं। पहाड़। आपने कहा जबल पहाड़ को कहते हैं। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अहमद रज़ा भाई को। अगला सवाल है सुफियान भाई से। सुफियान भाई, आप बताएं बुरूज में कितने हुरूफ हैं? 4। बुरूज में 4 हुरूफ हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल है हमारे अहमद रज़ा भाई से। आप बताएं जो सूरत मदीना शरीफ में नाजिल हुई उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस: मक्की सूरत, मदनी सूरत, अरबी सूरत। मदनी सूरत। मदनी सूरत। आपसे सवाल नहीं था, अहमद रज़ा भाई से था। ठीक है सवाल। तो अहमद रज़ा भाई कह रहे हैं कि उसे मदनी सूरत कहते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10। 5 क्यों मिलेंगे? क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं। ठीक है, तो अहमद रज़ा भाई को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। जी सुफियान भाई, आप उस सूरत का नाम बताएं जो सूरह फातिहा के बाद आती है। सूरह बकरा। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा आती है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे सुफियान भाई को। और इसी के साथ हमारे सुफियान भाई अहमद रज़ा भाई से 5 पॉइंट्स आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है अहमद रज़ा भाई से। आप कोशिश करें कोई पॉइंट ना छूटे। ठीक है, अहमद रज़ा भाई आप बताएं वमा मिन दाब्बतिन से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? 30वां। आपने जवाब दिया 30वां पारा स्टार्ट होता है। सुफियान भाई, क्या लगता है सही जवाब है? फिर सही जवाब क्या है? 12वां पारा। वमा मिन दाब्बतिन से 12वां पारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस सवाल में अहमद रज़ा भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जी सुफियान भाई, अब अगला सवाल आपसे है। आप बताएं सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? 3। सूरह कौसर में 3 आयतें हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे सुफियान भाई को। जी अहमद रज़ा भाई, आप बताएं सूरह कदर में किस मुबारक रात का जिक्र है? शब कदर। सूरह कदर में शबे कदर का जिक्र है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अहमद रज़ा भाई को। जी सुफियान भाई, आप बताएं अबाबील में कितने हुरूफ हैं? 6। अबाबील में 6 हुरूफ हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में भी सुफियान भाई को मिले हैं 10 पॉइंट्स। जी अहमद रज़ा भाई, अब आपसे आपका आखिरी सवाल है। आप बताएं सूरह कुरैश कौन से पारे में है? 30वें। सूरह कुरैश 30वें पारे में यानी अम्मा पारे में है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में हमारे अहमद रज़ा भाई को मिले 10 पॉइंट्स। जी सुफियान भाई, आप बताएं सूरह मुज़म्मिल कहाँ नाजिल हुई? ऑप्शंस: मक्का शरीफ, मदीना शरीफ या फिर बैतुल मुक़द्दस। मक्का शरीफ। आप कह रहे हैं सूरह मुज़म्मिल मक्का शरीफ में नाजिल हुई। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं। ठीक है, तो इस सवाल में इन्हें मिले 5 पॉइंट्स और इसी के साथ हमारे सुफियान भाई का टोटल है 45 पॉइंट्स और हमारे अहमद रज़ा भाई को मिले हैं 35 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? सुफियान भाई आज के हमारे विनर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا